قدیم زمانے میں ایک دور دراز گاؤں میں نائل اپنی بیوی کے ساتھ ایک سادہ سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا جو مٹی کے برتن بیچ کر روزی کماتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی اشیاء کی کم مانگ اور کم آمدنی کی شکایت کرتا تھا۔ کام سے واپس آتے وقت وہ اپنے ساتھ ایک روٹی، ایک مٹھی کھجوریں اور اتنی ہی زیتون لاتا تھا۔ یہی اس کا اور اس کی بیوی زینب کا کھانا تھا جب سے اس نے اس سے شادی کی تھی۔ زینب گھر کی مالکہ تھی۔ اس نے یہ گھر اپنے والدین سے وراثت میں حاصل کیا تھا کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زینب ایک سمجھدار اور صابر عورت تھی۔ اپنے شوہر کی کمزور حالت کے باوجود وہ ایک شاکر اور قناعت پسند بیوی تھی جو اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنے شوہر کے لیے رزق کی فراوانی اور اس کے کام میں برکت کی دعا مانگتی۔ دن اور مہینے گزرتے گئے لیکن حالات جوں کے توں رہے۔ جب وہ دونوں اپنا کھانا کھاتے تو وہ آدمی دیوار سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لیتا اور کہتا، کاش اللہ ہمیں اپنے کرم سے نوازے تاکہ میں اسے بھر سکوں۔ زینب اس کی بات عجیب سا سن کر حیران ہوتی کیونکہ وہ نہ تو اس کے مقصد کو سمجھ پاتی اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کیا بھرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ مشکل سے اپنے دن کا خرچہ پورا کر پاتا تھا۔ ایک رات جب اس نے بار بار یہ دعا سنی تو اس نے اس بارے میں گہرائی سے سوچا اور اپنے دل میں کہا، میرا شوہر سارا دن محنت کرتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں، شاید وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اسے رزق ملے تاکہ وہ اپنا خالی پیٹ بھر سکے۔ اس وقت سے اس نے اپنا کھانے کا حصہ اس کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن بیچاری زینب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر غربت کا ڈرامہ کرنے کے باوجود خود کو کسی چیز سے محروم نہیں رکھتا تھا۔ وہ روزانہ بازار جاتا جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق بہترین کھانوں اور پکوانوں کا مزہ لیتا، پھر گھر واپس آتا سادہ سا کھانا لے کر جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہ ہوتا، غربت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے۔ لیکن بیچاری زینب کو اس کا علم نہ تھا اور وہ اس کھانے سے محروم رہتی جو وہ بازار میں کھاتا تھا۔ پڑوسنوں نے نوٹ کیا کہ اس کے شوہر کے ہاتھ ہمیشہ خالی ہوتے، لیکن زینب ان کی کسی بھی مدد کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی، اس ڈر سے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کا شوہر بھوکا ہے۔ وہ دعوی کرتی کہ وہ اس کی ضروریات خریدتا اور اپنے جبے کے نیچے چھپاتا ہے، لیکن پڑوسنوں نے کبھی اس کے گھر سے کھانے کی خوشبو نہیں سونگھی اور نہ ہی اسے کبھی نیا لباس پہنے دیکھا، جس سے وہ اس کے لیے افسوس کرتے کیونکہ وہ ابھی جوان تھی اور اس زندگی کی مستحق نہ تھی۔ دن گزرتے گئے اور اس کا شوہر اچانک بیمار ہو کر بستر پر پڑ گیا۔ علاج اسے شفا نہ دے سکا، حتیٰ کہ اس کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ تب زینب رو پڑی اور کہا، میں اپنی روٹی کا آدھا حصہ اس کے ساتھ بانٹتی تھی اور خود چوتھائی سے گزارا کرتی تھی، لیکن اب مجھے وہ چوتھائی بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے چند درہم خرچ کیے جو جلد ہی ختم ہو گئے، اور وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے، کیونکہ اس کے کوئی رشتہ دار نہ تھے جن سے وہ مدد مانگ سکتی۔ اس کے محلے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عاصم تھا۔ وہ تعمیراتی کام کرتا تھا لیکن زیادہ تر وقت بے روزگار رہتا۔ اس کے پاس کوئی گھر نہ تھا کہ وہ اس میں پناہ لے، بلکہ وہ سڑکوں پر یا محلے کے کسی گھر میں سوتا تھا۔ جب اسے بیوہ کی خبر ملی تو اس نے اپنے دل میں کہا، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے شادی کی درخواست کروں گا، اس طرح میں اپنا گھر بناؤں گا، اپنی کمائی سے اس کا خرچ اٹھاؤں گا اور ہم اس کے آرام دہ گھر میں ایک ساتھ رہیں گے۔ عاصم مسجد کے امام کے پاس گیا اور اس سے زینب سے خطبہ کرنے کی وساطت کرنے کو کہا۔ جب امام نے زینب سے اس کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ عاصم ایک نیک کردار کا نوجوان ہے لیکن غریب ہے، تو زینب نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی۔ وہ قبول اور انکار کے درمیان متردد تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے ساتھ اس کی حالت پہلے سے بھی بدتر نہ ہو جائے، لیکن اس کی عقلمندی نے اسے یہ سمجھایا کہ زندہ انسان مردہ سے بہتر ہے، غربت کوئی عیب نہیں، اور اہم یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کا سہارا بنے۔ آخر کار اس نے حامی بھر لی اور امام کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب محلے والوں کو عاصم کی شادی کی خبر ملی تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ کسی نے اسے جبہ اور جوتے دیے، کسی نے اسے حمام لے جا کر نہلایا، اور محلے کے نائی نے اس کے بال اور داڑھی سنوار کر اسے خوشبو لگائی۔
ज़ैनब ने अपनी माँ का एक पुराना लिबास निकाला, नहाई और उसकी पड़ोसनों ने उसे ज़फ़ाफ़ की रात के लिए सजाया। लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि मोहल्ले की औरतें उसका मजाक उड़ाएंगी, क्योंकि उसने सुना था कि आसिम एक सख्त मिजाज आदमी है। लेकिन जब आसिम आया तो वो हैरान रह गई कि वो एक नेक किरदार और खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान है। उसने ज़ैनब को सलाम किया और उसे एक लिपीटा हुआ तहफा दिया। तब ज़ैनब ने दिल में कहा, मैं उसकी गुर्बत और कमज़ोरी की वजह से उसे ठुकरा देने वाली थी, लेकिन शुक्र है कि मैंने दुनियावी सोच से फैसला नहीं किया। आसिम चुपके से उसकी तरफ देखता था और उसकी खूबसूरती उसकी तवक्कात से बढ़कर थी। शादी से पहले उसका वाहिद मकसद एक साफ स्थरी जगह ढूंढना था जहां वो रह सके। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पड़ोसियों ने उनके लिए मोहब्बत और रहमत से भरी जिंदगी की दुआ दी। फिर रुखसत हो गए। एक सुबह शादी के 2 दिन बाद आसिम सुबह सवेरे उठा और गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा। वो हर जगह घूमता रहा, यहाँ तक कि एक ताजिर ने उसे रोका और अपने घर के उर्द गर्द की दीवार की मरम्मत करने को कहा। आसिम ने बगैर हचकचाहट के आस्तीने चढ़ाए और जोश से काम शुरू कर दिया, जबकि उसका जहन ज़ैनब के बारे में सोच रहा था, जिसे वो बगैर खाने या सामान के छोड़ आया था। काम खत्म होने पर ताजिर ने आसिम की मेहनत और अच्छे काम की तारीफ की और उसे इज्र दिया। फिर अगले दिन घर को रंग करने के लिए वापस आने को कहा। खुशी से भरा हुआ आसिम बाजार गया और गोश्त, सब्जियां, कुछ मसाले और तेल खरीदा। घर वापस पहुंचते ही ज़ैनब उसे और उसके लाए हुए सामान को देखकर खुश हुई। वो उठी, दालान से हिंडियां निकाली, पड़ोसन से कुछ लकड़ियां उधार ले और खाना पकाने लगी। ये काफी उर्से बाद पहला मौका था जब उसके घर में खाने की खुशबू फैली। खाना तैयार होने के बाद दोनों ने मिलकर खाया, यहाँ तक कि उनके पेट भर गए। उन्होंने उस नामत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि ये नामत हमेशा कायम रहे। आसिम मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पास आज रात सहारने के लिए कुछ नहीं, लेकिन कल मैं चाय, चीनी और शायद कुछ बादाम खरीद लूंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूं और सोना चाहता हूं, क्योंकि कल सुबह सवेरे बहुत काम है। फजर के तुलुआ होते ही आसिम मर्गों की आवाज पर उठा, नमाज पढ़ी और काम पर चला गया। वो सारा दिन गायब रहा। ज़ैनब को भूख लगी तो उसने हिंडिया में बचा हुआ खाना खाया, फिर घर की सफाई में मसरूफ हो गई। शाम होते ही उसने अपने शौहर की आवाज सुनी। खुशी से चहक उठी और दरवाजा खोलने दौड़ी। आसिम 2 टोकरियां भरकर सामान लेकर आया। वो खुशी से अपनी बीवी को सामान देखते हुए देख रहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जिस ताजिर के घर को मैंने रंग किया वो एक अमीर और सखी आदमी है। उसने दोपहर के खाने में मुझे लोबिया का प्याला और मर्गी की रान दी, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे लिए छुपा लिया। जब उसने मुझे ये करते देखा तो पूछा कि क्यों, तो मैंने बताया कि मैं ये अपनी बीवी के साथ बांटना चाहता हूँ। उसने मेरी नेकी की तारीफ की और काम खत्म होने पर न सिर्फ मेरी उजरत दी, बल्कि एक टोकरी भरकर हर किस्म की सब्जियां और फल भी दिए। फिर अपने बाड़े से एक मर्गी तोहफे में दी और इसरार किया कि मैं तुम्हारे पास कुछ भी न लेकर न जाऊं। आसिम ने खुशी से बताया, वापसी पर मैंने चाय, चीनी, बादाम और लकड़ियां खरीदें और मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। कुछ ही देर में घर में मसालेदार मर्गी की खुशबू फैल गई। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए। फिर चाय के कप और भने हुए बादामों से लुत्फ अंदोज हुए। आसिम अब हर रोज घर कुछ न कुछ रिस्क लेकर आता था। एक शाम उसने ज़ैनब के लिए कपड़े का एक टुकड़ा लाया और कहा कि वो अपने पुराने कपड़ों की जगह नया लिबास सिलाई करे। कुछ दिन बाद उसके लिए जूते लाए। वक्त गुजरने के साथ ज़ैनब की हालत बेहतर होने लगी। उसके चेहरे की चमक बढ़ गई और वो अपने शौहर से उस कदर मोहब्बत करने लगी कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो उसे इज्जत और कदर से जनाब आसिम कहकर बुलाती। एक रात उनके पड़ोसी मंसूर, जो एक मगरूर आदमी था, ने सुना कि ज़ैनब अपने शौहर को जनाब कहकर पुकारती है। वो गुस्से से बोला, क्या तुमने देखा? ज़ैनब जो इशराफिया की बेटी है, कल एक आवारा से शादी की और अब उसे जनाब कहती है। लेकिन उसकी बीवी ने हिकमत से जवाब दिया, क्या आसिम उससे बेहतर नहीं, जो ज़ैनब को भूखा छोड़ता था, हालांकि अल्लाह ने उसे नवाजा था? क्या मैं गलत हूँ? मंसूर ने हचकचाते हुए सिर हिलाया और कहा, जब ज़ैनब की हालत बेहतर हो जाएगी
उसे उस गरीब की जरूरत नहीं रहेगी और सब अपनी असल हालत पर लौट जाएंगे। यही रवाज है। लेकिन मंसूर को यह नहीं मालूम था कि ज़ैनब ने आसिम के साथ ही सच्ची मोहब्बत पाई थी। इब्तदा में उसने सोचा कि आसिम भी दूसरे गरीबों की तरह है जो बस खाता और सोता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे मालूम हुआ कि वो एक शरीफ नफ्स और नेक किरदार इंसान है। उसने ये भी देखा कि वो रोज़ाना कुछ किताबें पढ़ता है। जब उसने उन किताबों को देखा तो पता चला कि वो तब के बारे में है, लेकिन आसिम ने उसे ये नहीं बताया कि वो उन्हें क्यों रखता है। ज़ैनब एक ज़हीन औरत थी, इसलिए वो अपने शौहर के लाए हुए रिज़्क़ का कुछ हिस्सा बचाती थी। मुश्किल दिनों या मेहमानों की आमद के लिए तैयारी करती थी। वक्त गुजरने के साथ उसके पास दूसरी औरतों की तरह दाल, खजूर, तेल और खशक गोशत का ज़ख़ीरा जमा हो गया। लेकिन एक दिन जब आसिम भारी पत्थरों का बोरी उठाए जा रहा था, एक बड़ा पत्थर उसकी टांग पर गिरा और उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वो काम करने से कासिर होकर घर पर रहने लगा। दिन गुजरने के साथ उसके पास जो कुछ था वो ख़त्म हो गया। वो गमगीन होकर अपनी बीवी से बोला, अगर मेरी ये हालत रही तो तुम भूखी रहोगी और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़ैनब ने प्राइतमाद मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो, मेरे पास दालान में इतना है जो हमारे लिए काफ़ी है। पड़ोसी मंसूर को अपने पड़ोसी की हालत का इल्म था, लेकिन उसने न तो उसकी इयादत की और न ही मदद की पेशकश की, ये उम्मीद करते हुए कि आसिम वापस सड़कों पर लौट जाएगा। लेकिन आसिम ने अपनी तकलीफ सब्र से बर्दाश्त की और वो ज़ैनब के ज़ख़ीरा करदा सामान पर एक हफ्ता तक गुजारा करते रहे, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। तब ज़ैनब ने उससे सख्ती से कहा, फिक्र न करो, मैं काम ढूंढ लूँगी। मैं मोहल्ले की औरतों के लिए ओन काट सकती हूँ या जो कि पैसाई कर सकती हूँ। जिसने हमें पैदा किया वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। आसिम एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर गौर करते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी हमेशा मुश्किल रही है। मेरे वालिद जड़ी बूटियाँ और अद्वियात बेचते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे तब जड़ी बूटियों की तालीम के लिए भेजा, लेकिन वो जल्द बीमार हो गए और फोत हो गए। फिर मेरी माँ भी उनके पीछे चली गई। मेरे भाइयों ने घर बेच दिया और माल गनीमत बांट ली। मुझे मेरे हिस्से से महरूम कर दिया। मुझे अपने चचा के पास रहना पड़ा। एक दिन उन्होंने मुझे एक थैला पैसे दिया और कहा कि अब मैं खुद पर इन्हिसार करूं, क्योंकि वो मुझे मजीद पनाह नहीं दे सकते। ज़ैनब ने जवाब दिया, कौन जानता है कि तकदीर हमारे लिए क्या छिपाए रखती है। जब वो बातें कर रहे थे, अचानक आसिम की नज़र एक छोटे से चूहे पर पड़ी जो दीवार के शगाफ से गुजर रहा था। ज़ैनब ने झाड़ू उठाया और गुस्से से चीखी, ये परेशान कुन चूहा फिर वापस आ गया, चोरी करता है और गायब हो जाता है। हमें ये दीवार फौरन ठीक करनी होगी। आसिम ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। जब वो दीवार का मायना कर रहा था, उसने देखा कि एक ईंट ठीक से जड़ी नहीं थी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की ताकि चूहे का छपने का मकाम देख सके, लेकिन हैरत से उसे एक छोटा सा गड्ढा नजर आया जिसमें एक लकड़ी का संदूक था। उसने संदूक निकाला और जब उसे खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्कों से भरा हुआ देखकर दंग रह गया। बगैर हचकिचाहट के उसने अपनी जेबें सोने से भर लें, फिर संदूक को वापस रख दिया और ईंट को उसके ऊपर रखकर खामोश रहा। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। वो बाजार गया, एक मिरहम खरीदा और अपनी टांग पर लगाया। फिर वो एक बाग में बैठकर खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा, जो उसने अपनी बीमारी और घर पर रहने की वजह से नहीं देखे थे। एक घंटे बाद उसे काफ़ी बेहतरी महसूस हुई। दर्द कम हो गया और वो बगैर किसी दुश्वारी के चलने लगा। फिर उसने खरीदारी की और एक हमाल को खाने और सामान के थैलों को घर ले जाने के लिए रख लिया। जब ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला, वो हैरत से सकते में आ गई कि उसकी आंखों के सामने हर वो चीज़ थी जो दिल चाहता था, खाने, कपड़ों और खुशबुओं का सामान। खुशी की शिद्दत से उसे पैसों के माखद के बारे में कोई सवाल नहीं आया, बल्कि वो अपने शवहर के लाए हुए सामान में मसरूफ़ हो गई। अशाइये के बाद ज़ैनब ने नया लिबास पहना और सज सनौर की। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम सिर्फ रेशम पहनोगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें खैर से नवाजा है।
फिर उसने उसे सोने के बारे में बताया जो उसे मिला था। सोने की एक छुड़ी निकाली और उसे अपनी बीवी को दी। कहा कि ये उसकी मुल्कियत है और वो उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ज़ैनब ने, जो उसकी ईमानदारी और इमानतदारी से मुतासिर थी, उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे रखे क्योंकि वो उसका ज़्यादा हकदार है। अगले दिन आसिम ने बुनाओं को बुलाया ताकि घर की मरम्मत और तौसिया की जाए, जो पहले खिस्ता हाल था। उसने दीवारों को सिंगमरमर से ढांपा, कीमती कालीन और नया फर्नीचर सजाया। ज़ैनब हर चीज को देखकर हैरान थी, इस तेज तब्दीली को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ उनका पड़ोसी मंसूर रोजाना उनके घर के सामने से गुजरता और आसिम की बदलती हुई हालत पर हैरत करता। वक्त गुजरने के साथ मोहल्ले वालों ने भी आसिम को जनाब आसिम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब अमीरों में से एक था। इसके पास घोड़ा और नौकर थे, लेकिन मंसूर अपने दिल में कहता, चाहे वो कितना ही अमीर हो जाए, वो मेरे नजदीक वही भूखा नंगा रहेगा। पैसा कोई सईदी नहीं बनाता। एक रात जब ज़ैनब अपने शौहर के साथ जाग रही थी, आसिम ने आ भरते हुए कहा, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि वो मुझे उसे उसकी रिजा के मुताबिक खाली करने की तौफीक दे। ज़ैनब उसकी बात से हैरान हुई और पूछा, मेरे साबिका शौहर अल्लाह से दुआ मांगता था कि वो उसे भर दे, और तुम दुआ मांगते हो कि उसे खाली करो। क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या है और तुम्हारा क्या मतलब है? आसिम मुस्कुराते हुए उठा और बोला, जो सोना मैंने पाया वो तुम्हारे साबिका शौहर का था, जिसे उसने उसी जगह छिपाया था जहां मैंने उसे इत्तेफाक से पाया जब मैंने चूहे का पीछा किया। वो न तो मुफलिस था न गरीब, बल्कि उसके दिल पर पैसे जमा करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जुनून सवार था। वो हमेशा दुआ मांगता था कि वो इस संदूक को सोने से भर सके। ये सुनकर ज़ैनब ने दर्द भरी आह भरी और रोने लगी। कहा, मैं भूखी रहती थी और महरूमी सहती थी जबकि वो पैसा जमा कर रहा था। लानत हो इस लालच और हिर्स पर। आसिम ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, माजी पर न रो और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुम्हें उससे बेहतर बदला दिया। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हारी इज्जत बेहाल हो गई है। गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं क्योंकि वो तुम्हारी सखावत जानते हैं। इसीलिए मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह हमारे कदमों को इस रिज्क को इसकी रिजा के मुताबिक खर्च करने की हिदायत दे। ज़ैनब ने अपने आंसू पूंछे और अपनी माँ की वो बात याद की जो कहती थी, थोड़े पर शुक्र करने से बहुत सी खैर आती है, लेकिन नाशकरी अपने साथ बड़ा इंजाम लाती है। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ मेरे लिए हमेशा दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे एक घर दे जो मुझे पनाह दे और एक नेक बीवी जो मेरा साथ दे। और देखो, उसकी दुआ पूरी हो गई। अगले दिन आसिम ने एक दुकान खरीदी और अपने वालिद से वर्से में मिले तभी आलात वहाँ मुंतकिल कर दिए। उसने किताबों से सीखे हुए इल्म की मदद से अद्वियात बनाना शुरू की। चंद महीनों में उसने इतना मुनाफा कमाया कि वो ज़ैनब को वो सारा पैसा वापस कर सका जो उसने उसे दिया था। लेकिन उनके पड़ोसी मंसूर की तिजारत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हुई, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर दीवालिया हो गया। उसे अपना सामान सस्ते दामों बेचना पड़ा, फिर अपने घर का फर्नीचर बेचना शुरू किया ताकि गुजारा कर सके। उसकी बीवी ने उससे इल्तिजा की, अपने पड़ोसी आसिम के पास जा और इससे कर्ज मांग। मैं ये हालत और ये गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मंसूर ने जिद करते हुए कहा, मैं भूख से मरना पसंद करूंगा, लेकिन उस आवारा से मदद नहीं मांगूंगा। आखिरकार उसकी बीवी अपने बेटे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। कुछ ही अरसे बाद कर्ज ख्वाहों ने मंसूर का पीछा शुरू कर दिया और उसे अपना घर बेचना पड़ा। इत्तेफाक से आसिम ही वो शख्स था जिसने उसका घर खरीदा। इस तरह मंसूर बेघर हो गया, अपने जानने वालों के घरों में पनाह मांगता फिरता, लेकिन वो उससे तंग आकर उसे निकाल देते। एक दिन जब वो बाजार में था, इसने एक बदहाल कपड़ों वाले लंबी दाढ़ी वाले आदमी को भीख मांगते देखा। करीब जाने पर उसे पता चला कि वो मंसूर है। आसिम उसके पास गया और बोला, अब बताओ, हम में से कौन भूखा और नंगा है? तुम मुझे गालियां देते थे और सड़क पर सूते देखकर हकारत की बातें करते थे। मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ मांगी और उसने मेरी दुआ कबूल की और मेरा दिल ठीक किया। लेकिन तुमने ज़ैनब के शौहर से कुछ नहीं सीखा और अब तुम्हारी बारी आई। मंसूर ने गमगीन नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा,
क्या तुम यहाँ मुझ पर तंज करने आए हो? आसिम ने जवाब दिया, मेरी ज़बान तंज नहीं जानती। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाऊंगा और एक शराफतमंदाना काम दूंगा। मंसूर ज़ारो कितार रो पड़ा और बोला, लगता है ज़ैनब ठीक कहती थी जब उसने तुम्हें जनाब कहा। 1 महीने बाद मंसूर की हालत बेहतर हो गई। उसने अपनी बीवी और बेटे को वापस बुला लिया और अपने पड़ोसियों से बदसलूकी पर तौबा की, लेकिन वो खामोश रहता, सारा दिन काम करता और घर वापस आकर बगैर कुछ कहे सो जाता, सिवाय ज़रूरत के। एक शाम उसकी बीवी ने पूछा, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान करती है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम तभी खामोश रहते हो जब तुम कुछ मंसूबा बना रहे होते हो। वो गुस्से से चलाया, क्या तुम चाहती हो कि हम आसिम के खादिम बने रहें? मैं अपनी तिजारत और घर वापस लेने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बचाया हुआ पैसा काफ़ी नहीं है। उसकी बीवी ने खबरदार किया, होशियार, मुझे दोबारा भूख में न डालना, मैं उस बार तुम्हारी हमाकत बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और गुस्से से चला गया। दिन गुजरते गए और मंसूर खफिया तौर पर अपनी दौलत दोबारा हासिल करने की मंसूबा बंदी करता रहा। इस दौरान शहर में ये खबर फैल गई कि बादशाह की बेटी बीमार है और हकीम उसे शफा देने से कासिर हैं। आसिम, जो अद्वियात बनाने में माहिर हो चुका था, ने जड़ी बूटियों से एक मरकब तैयार करने का फैसला किया और दिल में कहा, जो दवा में बना रहा हूँ, अगर वो शहजादी को शफा न दे तो कम इसका दर्द कम करेगी और उसे नींद आ जाएगी इंशाअल्लाह। फिर उसने मंसूर से कहा, मेरे लिए एक साफ बोतल लाओ ताकि मैं उसमें दवा रख सकूं। मंसूर गोदाम में गया, लेकिन उसने बदनीयती से बोतल में जहर डाल दिया और दिल में कहा, जब शहजादी मर जाएगी आसिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो मैंने खोया। शाम को आसिम बोतल घर ले आया और उसे मेज पर रख दिया, फिर सोने चला गया। लेकिन आधी रात को वही चौहा अपने बल से निकला, बोतल की तरफ बढ़ा, उसे धक्का दिया कि वो गिर गई और उससे बहने वाला महलूल पी लिया, जिससे वो वहीं मर गया। अगली सुबह जब आसिम उठा, उसने चौहा मुर्दा पाया और देखा कि उसने बोतल का महलूल पिया है। उसे एहसास हुआ कि बोतल में जहर था, लेकिन उसे उसका माखज़ नहीं मालूम था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने चूहे को भेजा ताकि ये बात जाहिर हो, वरना वो बादशाह के साथ एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता जिसका कोई हल ना होता। उसने दवा दोबारा तैयार की और उसे लेकर बादशाह के महल की तरफ चला गया। जब वो पहुंचा, बादशाह अपनी बेटी के बस्तर के पास परेशान खड़ा था। आसिम ने आगे बढ़कर शहजादी को मरकब की चंद बूंदें पिलाएं। चंद मिनटों में उसने आहिस्ता से आंखें खोले और कमजोर आवाज में बोली, अबू। सब हैरान रह गए और कुछ ही घंटों में उसके चेहरे का रंग बेहतर होने लगा और वो बैठने के काबिल हो गई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। आसिम हैरान खड़ा बोतल को देख रहा था और दिल में कह रहा था, ये मरकब जो मैंने बनाया, इसका असर एक दिन और कई खुराकों के बाद होता है। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी तौफीक पर हम्द की। इधर मंसूर शहजादी की मौत की खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे ढोल बजने और शहर भर में उसके शफायाब होने की खबर सुनकर हैरत हुई। वो परेशान हुआ और सोचने लगा कि क्या हुआ, वो क्यों नहीं मरी। अगले दिन आसिम ने उसे दुकान पर बुलाया और पुरस्कून लहजे में पूछा, क्या तुम वही नहीं हो जिसने कल रात बोतल लाई थी? मंसूर हिकलाते हुए बोला, हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? आसिम ने हिकमत से मुस्कुराते हुए कहा, कुल जो दवा मैंने बनाई थी उसका रंग बोतल में बदल गया था। इसमें कोई अजीब सी चीज शामिल की गई थी और मुझे दवा दोबारा बनानी पड़ी। क्या तुमने बोतल लाते वक्त कुछ अजीब नहीं देखा? मंसूर का चेहरा जर्द पड़ गया और वो गिरने के करीब था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, शायद बोतल गंदी थी या उसमें कुछ गिर गया हो। आसिम ने उससे बुरा रास्त टकराव नहीं किया, लेकिन पुरस्कून लहजे में बोला, सुभान अल्लाह, कभी कभी चूहे भी बाज इंसानों से ज्यादा रहम दिल होते हैं। इस रात मंसूर सो न सका। आसिम की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं और उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। इसने अपने तमाम पिछले अमाल पर गौर किया और समझा कि उसकी लालच ने उसे तबाह किया। अगले दिन वो आसिम के पास आया, सब कुछ एतराफ किया और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगी। आसिम ने आ भरी और कहा,
अल्लाह गफूर और रहीम है, लेकिन अगर तुम अपनी तौबा में सच्चे हो तो तुम्हें अपनी खुताओं की तलाफी करनी होगी। जब तक मुझे उसका यकीन ना हो जाए तुम मेरे साथ काम करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक अलग दुकान दूंगा, अद्वियात से दूर, और तुम्हें सामान दूंगा ताकि तुम अपनी तिजारत दोबारा शुरू कर सको। इस दिन से मंसूर वाकई बदल गया और अपने काम में मुखलिस हो गया। इसने आसिम की दुकान को तरक्की देने में मदद की, जो शहर के सबसे बड़े दवासाजों में से एक बन गई। आसिम शाही दरबार का पहला हकीम बन गया और बादशाह से अजीम इनामात हासिल किए, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से थी कि उसने किसी महताज को खाली हाथ ना लौटाया और ना ही उसने किसी से बदला लिया जिसने उसके साथ बुराई की। हैरत की बात यह है कि जब आसिम घर वापस आया तो उसे वो सुराख नहीं मिला जहां से वो चूहा निकलता था। गविया वो कभी था ही नहीं। आसिम ने समझा कि वो चूहा उसे पहली बार सोना दिखाने के लिए भेजा गया था और दूसरी बार जहरीली दवा से बचाने के लिए। फिर वो कहीं से आया था, वहां वापस गायब हो गया। उसका किरदार खत्म हो चुका था। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बुराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह के हुक्म से अगली कहानी तक।